with us Reema Kundlani, and she is a sales and marketing professional. She has many feathers in her cap in this field. Yeah. We'll get to know more about it. Reema is actually going to tell us more about the family support system that she has had and how it has helped her develop in her personally, in career-wise, profession-wise, and also in many other ways. So let's welcome Reema. Okay. Hi, thank you so much for inviting me, first of all. It's such a nice platform to talk about it. Nice to have you here, Reema. Actually, more I'm inspired by your story than mine. So Reema, can you tell us more about you? Yeah, sure. Myself, Reema Kundlani. My name got changed after marriage as Kaira Narang. So nice name. Yeah, thank you. So I belong from Ahmedabad. Huh. I was born in Verawal. Huh. It's a small town in Gujarat, and was living with my family. Out of my 31 years, I have invested 8 years in enhancing my career growth. I was involved in sales, marketing, and I was an HOD of lead generation department. So throughout this 8 years of journey, I have learned patience, because that my company only, my last company has taught me really well about how you can be patient and what is rapport building and how you can communicate with different personalities and how you can just learn their mind, how well I can convince other, that all the activities, all the positive things I've learned from my last company. And yes, today I'm with you here. I just shifted to Pune 1.5 years back, and currently I'm looking job opportunity from Pune itself, so I can, because I have to stay lifelong here only, so I'm just looking for a good opportunity that comes my way. Okay, good. So, where you did your sales and marketing some course somewhere? No, I didn't done any course. It was like कहीं से शुरू किया and फिर जॉब में करते सीख गए कि कैसे करते हैं, और आगे जितना भी आगे बढ़ते गए तो मैंने ये सीखा कि किस तरीके से हम लोगों को कन्विंस कर सकते हैं, लोगों की परसेप्शन क्या है, वो क्या सोचते हैं, whether how much you can convince a person at what extent. That all I have learned from my job. I've never done any course. Okay. But yes, I was planning to do a digital marketing course, but that was left in a mid. I was about to get married, so. Okay. And how has your family support been? Okay. If I talk about my parents, because they come from a very conservative family, वो उनके वहाँ पे कभी कैसी लड़की ने इतना काम नहीं किया है, and sending to any other country was a very different task उनके लिए. Because my father always used to say कि मैं तो इसको 12th के बाद शादी करवा दूंगा. My mom didn't let that happen. फिर मैं ग्रेजुएशन खत्म हो मैं इसका शादी करा दूंगा. अगेन ये मास्टर इसका खत्म हो MBA मैं इसका शादी करा दूंगा. I wanted to get you married. And I got married just last year when I was 30. So ये फिर चलता रहा. And my mother and my brother has been a biggest सपोर्ट मैं कह सकती हूँ, बिकॉज मेरे को एक अपॉर्चुनिटी, जब फर्स्ट अपॉर्चुनिटी मिला था वो दूसरी कंट्री का था. इट वाज ऑफ कुवैत. मेरा वीजा था मेरे हाथ में, एवरीथिंग वाज डन, पर माय फादर डिडंट अलाउ मी टू गो, एंड आई गॉट अनदर अपॉर्चुनिटी. बट माय फादर वाज रिपीटेडली कि मैं अपने बच्चे को कैसे भेजूं दूसरी कंट्री में. एनी पेरेंट वुड थिंक लाइक दैट, एंड बीइंग अ गर्ल आई एम नॉट मैरिड येट, तो वो एक टेंशन होता ही है कि कैसे भेजूं. देन इवन माय मैनेजर्स, माय कलीग्स asked my father to come in the office and they convinced. Oh my God. उन्होंने भी convince किया. So basically your family from the office as well. Yeah. They convinced a lot. My manager, my boss, the institute head, everyone was sitting, my colleagues, but उन्होंने भी convince किया. But my father said no, please मुझे माफ कर दो. But मैं नहीं भेज सकता इसको. तो opportunities चली गई. एंड उस वक्त जब आप देख रहे हो ना कि आपके सब कलीग्स जा रहे हैं और आप नहीं जा पा रहे हो, आपके हाथ में वीजा भी है, तो बुरा बहुत लग रहा था उस वक्त. उस वक्त इमोशनल भी मोमेंट था, बिकॉज वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड जो मेरी थी उसको मेरे एक्सप्रेशन से पता चल गया कि हाउ बैड आई एम फीलिंग.
फिर अभी हम मेरे जो कजन ब्रदर थे वो भी आए उनको कन्विंस करने के इफ शी इज गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं। उनको ये था हमारे खानदान में कोई नहीं गया है, नॉट इवन ननियाल में भी कोई आज तक लड़की गई नहीं थी एंड ददियाल में भी कोई लड़की ऐसे गई नहीं थी कि वो ऑफिस के बेस पे ही शी इज गोइंग टू डिफरेंट कंट्रीज, शी इज गोइंग फॉर एक्सप्लोरिंग डिफरेंट कंट्रीज वर्क के पर्पस में। इट वॉज डिफरेंट। और जीसीसी कंट्रीज का एक अलग सबके दिमाग में होता है कि फिर माय ब्रदर फॉर योर, सॉरी टू इंटरप्ट यू, आप फॉर व्यूअर्स बता देंगे जीसीसी कंट्रीज के बारे में? हाँ, मिडिल ईस्ट कंट्रीज थोड़ी दे हैव अ डिफरेंट कल्चर, कल्चरल डिफरेंस होता है। और वहाँ की कंट्रीज में जब हम गए देन आई रियलाइज दे आर द सेफेस्ट कंट्रीज, they are the safest country to visit. मैंने इतना सेफ्टी, मतलब मुझे जब मैं गई थी, each and every country you step in, they are very safe. बट बिकॉज मेरे पेरेंट को ऐसा लग रहा था कि वो एक होता है ना कि अकेली लड़की को दूसरे देश प्रोटेक्शन सिक्योरिटी के हिसाब से कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, तो उस हिसाब से। But my brothers, everyone, like my बड़े पापा also convinced के जाने दो. My cousin brother played a vital role in convincing. No, he said no, he would say. Then अभी कुछ हमको मिल नहीं रहा था. So my mother and my brother took a decision. हम छुपा के भेजेंगे. Wow, interesting. छुपा के भेजेंगे कि अभी कुछ कर नहीं सकते. तो व्हाट दे सेड कि बड़े पापा के घर पे वो 7 दिन, क्योंकि 6 डेज का ट्रिप होता था, कि 7 दिन वो अपने बड़े पापा के घर पे है, वो वहां गई है, तो वो मेरे को भेज देते थे। और जब मैं लैंड करने वाली हूँ उस दिन वो लोग तकिया और बिस्तर रख देते थे। तकिया बिस्तर और ऊपर चादर कि शी स्लीपिंग। ओके, बट आई हैव नॉट लैंडेड इटसेल्फ, मैं आई नहीं हूँ, इंडिया पहुंची नहीं हूँ, बट वो एक पूरा सेटअप करके तैयार होता है। फिर वो जैसे ही वॉशरूम जाते थे, मैं फटाक से बैग वो मेरा भाई मुझे नीचे लेने आता था, बैग वो छुपा देता था कहीं पे, और मैं सो के अंदर ब्लैंकेट में हूँ। Wow, that's very interesting. So that was like and many trips. उसके बाद I have done like 6 to 8 trips ऐसे ही चलता था। You got a support from family, and you know कि you can't. It's like your partners in crime, but it was not a crime. it was for your good. Yeah, it was for my good. Yeah, and daddy का concern भी ऐसा वो नहीं, it is like for that side concern first your safety. Yeah. Because एक अभी जैसे आज when I'm speaking to you now, I get to know कि GCC countries are very safe. Very safe. And you've experienced it. I have experienced. So now किसी और को भी अगर जाना सोचना है तो now they know first hand experience. Yeah, Middle East countries you can travel solo also. Yeah, okay. A girl can travel solo also. It's safe. That's how we come to know. That's what this beauty of talk shows is all about. So you had mentioned about some challenges your family was dealing with, like your mom was not well. Yeah. And how your dad took care of everything. Yeah, actually मेरी mom arthritis patient है. When I was in 7th standard, so तब से उनको है, so she's suffering from past 17-18 years with that arthritis. तो उसमें धीरे धीरे करके उनका हर एक body part वो बीमारी को जकड़ लेता है। Okay. तो my father actually played a vital role supporting my mother. Oh. Because he was having because relatives जो पहले जमाने में क्या होता है कि they have a thought के छोड़ दो ना, अभी क्या है, दूसरी शादी कर लेना, वो एक पुराने जमाने का वैसा एक thought process होता है। But my father was stood by mom till now. वो उनके साथ मतलब कुकिंग करना है, कटिंग करना है वेजिटेबल्स का, हमको संभालना है। कभी कभी क्या होता था कि मम्मी बीमार है तो मेरे पापा ने भी मेरी चोटी की है। Yes, done. तो हर सिचुएशन पे उन्होंने मम्मी को सपोर्ट किया है। एंड इनफैक्ट बहुत से लोगों ने मजाक भी उड़ाया है कि पूरा ये तो सब्जी काटता रहता है, ये तो
औरतों की तरह किचन में काम कर रहा है, बहुत सारे कमेंट्स सुने। आई हैव हर्ड कमेंट्स अबाउट माय मदर कि ये लंगड़ी है, शी इज हैंडीकैप्ड। तब तो बहुत बुरा लगता था। मैंने फिर गुस्से गुस्से में लोगों को झाड़ा भी है, because I cannot, of course you cannot take it. I was not in that situation. And especially you can take it on you, but when it comes to your parents, never. it's unexcusable Unexcusable. crime. And it will anyone doesn't know कि मेरे father ने क्या किया है मेरी mom के लिए, because आज की तारीख में मैंने बहुत सारे देखे हैं कि husbands अपना तौलिया भी नहीं उठाएंगे या प्लेट भी हाथ में नहीं लेंगे, because I've seen in my surroundings कि नहीं, वो नहीं उठाते। My father उनके खुद के भी काम करते थे, रेडी होते थे, शॉप पे जाते थे, मेरी मॉम के लिए भी ध्यान रखते थे, वेजिटेबल्स कट करते थे, कुकिंग करते थे, हमको संभालते थे। रात को अगर हम आते हैं तो शी हैज माय मदर वेंट फॉर, वो गए थे 3 महीने के लिए एक इसमें सेंटर में जिसमें आर्थराइटिस का ट्रीटमेंट होता है। माय ब्रदर वेंट देयर, वो 2 दिन में आ गया, बोला नहीं यहाँ पे बहुत फीका चाय मिलता है रह नहीं सकते। माय फादर वेंट, 3 महीने वो उनके साथ थे। He was adjustable in each and every situation with my mom. Hats off. Touch wood. Actually. Family. And we have now spoken about your family in profession. You were traveling here and there all alone. Yes, at the back your family was there to support. But when you went exposed to the open world, did you face any challenges? Absolutely. Actually, बहुत सारी ट्रिप्स में कोई ना कोई तो बचा ही लेता था। कभी बड़े पापा के घर पे हूँ, मासी ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। बहुत मैं मिस कर रही थी। एंड ऑब्स्टिकल्स क्या होते हैं कि आप कोई भी कंट्री में जाते हैं, आपको उनके रूल्स समझने में टाइम लगता है। तो जब मैं कुवैत में थी, एक टाइम होता है रनवे के लिए, जब आप जो भी चलते हैं उनका एक पाथ होता है अलग से, तो उनका एक टाइमर होता है। तो उतना टाइमर जो होता है मे बी 30 सेकेंड्स का, या मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, तो वो टाइमर एक्सीड हो चुका था वॉकर्स का जो पाथ करने का, क्योंकि वो फिर सारी गाड़ियां रुक जाती हैं। मैं शायद बीच में थी, मैं जब तक वो लाइट ग्रीन हुई कि गो, तो मैं शायद बीच में ही टाइमर में ही थी। तो उस वक्त क्या हुआ कि एक बहुत जोर से, फिर तो व्हीकल्स बहुत अपनी स्पीड पे आते हैं, तो आई वॉज सेव्ड बाय आई गेस डिस्टेंस ऑफ आई गेस मैं शायद 5 सेकेंड से या 6 सेकेंड से बच गई। अदरवाइज दैट माय कलीग्स ने देखा, मेरे बॉस ने देखा कि मैं जल्दी भागी थी, क्योंकि अगर वो मेरे को हिट करता आई वुडंट बी अलाइव फर्स्ट ऑफ ऑल। वो फिर अब नहीं होता ही नहीं, वो उनकी जो स्पीड है वो मेंटेन करेंगे, क्योंकि वो रूल्स एंड प्रोटोकॉल्स में। एंड वो अगर हिट कर जाता आई वुडंट बी अलाइव। सेकेंडली माय पेरेंट्स हैज टू पे द मनी, क्योंकि मेरा गलती था। मैंने जब मेरा टाइम था तब मैं नहीं चली, जब टाइम बंद होने वाला था आई हैव टू फॉलो द रूल्स ना, मुझे भागना चाहिए था अगर मैं टाइम से। बेसिकली हाँ, वही सब पता करने में टेक्स टाइम, एंड व्हेन यू आर अलोन it is all the more difficult, because there is no one to guide you. Because वो क्या होता है कि अगर गलती से भी मुझे लग जाता, तो if they want my body back, they has to pay the money to that person who has hit me. Oh my God! Because it's my fault. मेरा गलती है। They will say कि हमारा green light हो गया था, we were allowed to go. It's your daughter, why she couldn't cross the path at time, जब टाइम दिया गया था। और अपार्ट फ्रॉम दिस अदर कंट्रीज कभी ऐसा कुछ भी ऐसे सेफ्टी रिलेटेड कंसर्न, कुछ सेफ्टी रिलेटेड, इट्स एक्चुअली सेफ अगर आप वहाँ के लोगों को जानते हो और वो सब। मुझे तो कंट्रीज में मतलब आई एम इन लव विद दुबई, आई एम बैडली इन लव विद दुबई। तो अगर मुझे कभी भी ऐसे वापस अपॉर्चुनिटी जाता है गो तो हुआ था बहरीन में, हम पहली बार कंट्री ट्राई कर रहे थे, एक्सप्लोर कर रहे थे, हम पहली बार गए थे, मैं और मेरी मैनेजर गए थे। अब वीजा सब मैंने करवाया था। वहां पे जाके मुझे पता नहीं था कि ये जिस होटल वाले ने हमारा वीजा करवाया है, व्हाट हैपेंड दैट देयर वाज अ क्लब, जॉइंट क्लब नियर बाय, and there were some activities happening. It was legal. It was legal actually. There were some activities happening.
तो हमें पता नहीं था कि उस होटल के पास में ऐसा क्लब है या इनसाइड ऐसा क्लब है होटल में। एंड वी वर लाइक कि अभी अगर वीजा कैंसिल करवा के दूसरे जगह जाते हैं अप्लाई करने में टाइम लग जाएगा, क्योंकि वीजा एप्लीकेशन में बहुत सारा टाइम लग जाता है। एंड सेकेंडली अगर हम वीजा के बिना किसी कंट्री में रह रहे हैं, वो भी एक लीगल नहीं, आप रह सकते हैं, आपके पास वीजा ही नहीं है तो आप कैसे रह सकते हो। उसने बोला अगर आप होटल से एग्जिट करोगे मैं वीजा कैंसिल कर दूंगा। ओह माय गॉड, कि अभी मैं इनका, क्योंकि वो हमारा स्पॉन्सर कर रहा था वीजा। देन मुझे खुद ही नहीं समझ में आ रहा था मैं क्या करूं। एंड माय मैनेजर वाज वेरी बोल्ड, ब्रेव, इंटेलिजेंट, वो सब उसमें क्वालिटीज थी। तो शी सेड कि यहाँ से जाएं फिर इसकी बैंड बजाएंगे। मैंने तो फिर उसको बहुत सुनाया बंदे को कि जो हमारा मीडिएटर था कि तूने ऐसे होटल में कैसे करवा दिया। एंड द थिंग वाज कि आई एम द पर्सन हु गेट्स स्कैर्ड ऑफ दिस थिंग्स। तो शी वाज देयर कि नहीं, बी काम एंड ऑल दैट। देन जो क्लाइंट्स हमसे मिलने आ रहे थे उन्होंने हमें ये बताया कि दैट्स व्हाई वी आर नॉट कमिंग टू मीट, क्योंकि दिस एरिया इज लाइक डेडिकेटेड फॉर दैट। एंड आई वाज लाइक शिट। फिर तो बहुत ऐसे लग रहा था। द गार्ड्स, जो गार्ड्स थे इंडियन थे वो लोग, जो गार्ड्स थे, जो वहाँ पे स्टाफ था, वो हमको बाहर तक छोड़ने आते थे, हमारे रूम तक हमको पहुँचाते थे। हमारा रूम उन्होंने सबसे कॉर्नर में दिया था, बिकॉज दे नो के वेयर वी केम फ्रॉम एंड क्या हुआ। तो वो हमें सेफ्टी के साथ छोड़ के जाते थे और लेके जाते थे। हाँ, तो बोथ द साइड्स है। Both the sides आप सेफ आप नहीं फील कर रहे तो आपको करवाने वाले भी हैं, सपोर्ट करने वाले भी हैं। हम लोग ने फिर रोज छोड़ के जाते थे। माय मैनेजर एंड मी, हमारा बॉन्ड अलग है। व्हाट आई हैव लर्नड थिंग्स इन माय लास्ट प्रोफाइल, she has played a vital role, given me an opportunities. She has her own company. So big credit goes to her. Big credit goes to her. I still miss her, remember her. So वो एक चीज थी कि हुई, पर हम भी कम नहीं थे, हमने भी मजे लिए। So हम भी उस वक्त इतने शैतान, हम में भी इतनी बोलते नॉटीनेस थी। तो हम लोग भी ऐसे कि हाँ ठीक है ना, देखते हैं। तो हम लोग पीछे एकदम अंधेरे में रेस्टोरेंट में बैठ के देख रहे थे कौन एंटर कर रहा है, कौन एंटर कर रहा है। And I was like, and look at the dresses of the girls. I cannot imagine also. Wow. It was like revealing and exposing from each and everything. Yeah. तो मैंने बोला shit man, और हम लोग दोनों बैठ के पीछे हंस रहे हैं। और वो पता है उस गार्ड को कि ये लोग दोनों पीछे बैठे हैं। बट इसने फिर गार्ड आए, देख के गया, पर बोला कि जब जाना हो तब बताना, आई ड्रॉप यू ऑफ। तो ये सारी चीजें होती हैं कि आपको पता नहीं होता है। कभी कभी अभी जैसे कि आप वहाँ की सबवे में खा नहीं सकते, वहाँ रूल है कि आप खा नहीं सकते हो पैकेट या कुछ, क्योंकि वो उनका एक प्रोटोकॉल है, डिसेंसी है कि उनको रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो। हम बैठ के चिप्स का पैकेट खा रहे हैं। अच्छा, ये सब चीजें ध्यान रखनी पड़ती है। एंड उस पे फिर अगर आप गलत रूल्स ब्रेक करते हो तो आपको उसका जुर्माना भी भरना पड़ता है। दैट वाज 500 dirhams. Oh my god. 8,000 INR in Indian money. 8,000 for hitting chips. Yeah. And but the people are nice. People are nice. And from your journey in life, what message would you want to give to your viewers from different strata, I should say? Girls out there, people out there, families out there. तो क्या कोई किसी के लिए मैसेज that you have? I would say that it's a, like you said कि ताली दो हाथ से बजती है। If you want to achieve something in life, you should be very confident about it that yes, I wanted to achieve, and you should not, there should be family should be supporting equally, क्योंकि आप अकेले जाके लड़ नहीं सकते हो, क्योंकि देयर शुड बी सम बैकअप ऑफ योर्स। सो आप पेरेंट्स के साथ वो एक बोलते हैं कि उनको हम बोलते हैं ना, जैसे कि हम बिजी लाइफ हो गई है हमारी। सो व्हाट माय मदर एंड ब्रदर डिड, आई एवरी डे आई मेक श्योर आई कॉल देम और दे कॉल मी। सो इट्स अ गिव एंड टेक। वो उनको भी आप उतना टाइम दीजिए। एंड आई डोंट से, मैं ऐसे नहीं बोलती हूँ जैसा मैंने किया कि मैंने पापा को नहीं बताया और इतनी सारी ट्रिप्स में मैं उनको अंधेरे में रखा, वो मत करना। ठीक है, ये तो हमने बहुत रिस्क लिया, क्योंकि अगर कुछ हो जाता मुझे, माय मदर हैज टू पे
She took that chance. She took that chance. Agar if I die or something or the other happens to me, I know what my father will do to my mother. She would have gone through a lot. A lot. But then knowing that also, she took a chance because she did not want you to lag behind. Yeah. You know. Yeah. That is there. That's hats off to such a mom. And of course, your dad, in other ways, he has done. Otherwise, he is just tremendous because I don't think any man would be like him. कि इतना अपना ईगो सब कुछ छोड़ के he has just one sentence कि ये मेरी बीवी है और मैं इसका ध्यान रखूंगा end तक. Hats off to him as well. So, what is your vision of your career growth now, or what kinds of career opportunities would you want to explore? Actually, I'm looking for the opportunities majorly in sales because वो एक कीड़ा है मेरे अंदर and that won't be like वो कभी जाएगा नहीं अंदर से. So I'm looking for opportunities in sales, marketing, digital marketing because I'll be learning that course as well. तो अगर आगे इससे opportunities मिलती है उस certificate के base में, so why not? Lead generation. And what I'm looking, I had a dream of this. Like either I'm not saying this. At least for 10 years I'll be working in a company for a longer tenure. I'll be investing my 10 years. पर एक बुढ़ापे में what I have thought, either I'll be opening a pani puri का ठेला because that's my dream. Something special. Something special because I love pani puri at any cost. I just like explore. मैं जिस भी सिटी में जाती हूँ I first try पानी पूरी. तो वो मुझे करना है. किसी की वो होती है ना बड़ी sensitive ना होती है पानी पूरी. कभी भी खिला दो. Even I'm not well, I'll eat because that's मेरे को वो खाना ही है. तो ये चीज I'll do कि मैं एक डेला खोलूंगी and मेरे को कोई शर्म नहीं है कि भाई ये फैमिली की इज्जत क्या रहेगी, ये क्या रहेगी, ये करे, कोई शर्म नहीं मुझे. I do it. And my family, my in-laws are also supportive. I would say, if I talk about my mother-in-law, she has the best, you can say, way of thinking. In-law said, जो मैं जिस चीज से गुजरी हूँ, मैं तुम दोनों को वैसे नहीं जाने दूंगी. तुम दोनों पे मैं वो सारी चीजें नहीं करूंगी. तुमको जॉब करना है. What a thought! What a thought! Viewers, this is worth noting. जिस चीज से मैं गुजरी हूँ वो जरूरी नहीं है कि मेरी बहू भी गुजरे. She should have the best. She is in stage of she's 68 or 65. At that age also she's working. Wow. She's working. Incredible. And she's saying because we will be doing job. मैं पहले तो work from home मेरा चल ही रहा था जून से लेकर दिसंबर तक. She was helping us कि वो चाहे कुछ खाना बनाना है या कुछ फोल्ड करना है, कपड़े फोल्ड करना है या कुछ करना है. She said I won't stop working. We both say कि नहीं बैठो हम कर लेते हैं. But she said I won't stop working. मुझे चलते रहना है, मुझे कुछ ना कुछ काम करते रहना है. And she has been supportive. She never said to me कि तुम जॉब मत करो, ये मत करो. नहीं, ये तुम्हारा डिसीजन है, तुम्हें क्या करना है अपनी लाइफ के साथ. She never said to me कि I go and hang out with my friends. Can you can't go. You can't go. She has a trust on me. So that's why she is allowing me to go. तो ये सारी चीजें होती है कि एक दूसरे को समझ के चलना ही पड़ता है. It's both the way things. आप अच्छे हो तो सामने वाला अच्छा ही चलेगा. अगर कहीं ना कहीं उन्होंने मुझे उतना फ्रीडम नहीं दिया होता, पर मुझे भी ये चीज के ध्यान रखना है कि मैं फ्रीडम को क्रॉस ना करूं, अपनी लिमिट्स को. It's like you have to balance. Yeah. Right. तो टाइम पे आ जाना है, मुझे भी उनकी रिस्पेक्ट करनी है. So that and I love her. Great touch wood. Very good. Yeah, very good to hear about your family. भले लेट शादी हुई है but would you like to share any email ID or any contact so that sure. if any companies, organizations want to get in touch with you? Yeah, please you can if you want to hire me, I'll give 110% to any company. What knowledge and what exposure I can contribute towards your organization, trust me, I'll put my 110%. I'll be very hardworking. And I'll be sharing my email ID, that is reemahundani91@gmail.com. So if any opportunity comes in sales, lead generation, so please mail. Please remember. So आज हमने रीमा से काफी चीजें सुनी. It is not
कि हर समय हम लोग है ना, मैंने ये अचीव कर लिया, मैंने ये कर लिया, वो कर लिया, इसी के ऊपर में एपिसोड्स बनाएंगे. देयर आर डिफरेंट एस्पेक्ट्स टू अ वुमन, हर फैमिली, हर बैकग्राउंड, हर लर्निंग्स, बहुत सारी चीजें होती है. सो टुडे वी पिक्ड अप दिस टॉपिक बिकॉज यू नो समवेयर कहीं ना कहीं ये एक मैसेज भी जाता है फैमिलीज को अक्रॉस, that you need to be supportive. Yes. Yes, you cannot have those restrictions around all the time and all, and of course it's give and take both the sides, and you have to balance. Like Absolutely. Reema's parents, they have showed their love, care and concern for each other, and it was a drama also sometimes going out of the way, Yeah. but then it's so sweet. Yeah. That's why she's here. Has so many years of experience, and she is actually appreciated a lot for her skills, the sales and marketing skills in her. ये ऐसा है कि हम अभी ऐसे प्रो हो गए हैं कि हम सच्ची में टकले को भी कंघी भेज सकते हैं. That's a good one. That's a literal pro. And I just want to mention a little thing. My brother, हाँ. he has played the role of father, brother, mother, best friend, my mentor, everything. I actually I love her more than my mother. I really love him. I every day I used to talk with him for twice or thrice. क्या कर रहा है, भले वो 2 मिनट का conversation हो, but and he has been supportive. क्योंकि मुझे आज भी याद है कि मैं कहीं भी बारिश में कहीं फंस जाती थी, या मुझे मेरा एक टफ मोमेंट था, बहुत मेरे को, बिकॉज अगर आप ऐसी कोई भी लड़की नहीं होगी जिसके साथ वो उन्होंने फेस नहीं किया होगा कि इन बस और ट्रेन एक इनअप्रोप्रिएट टच हो जाता है या कुछ. सो वो होता ही है, हर लड़की के साथ होता है. एंड आई हैव ऑल्सो फेस्ड वन थिंग कि उस इंसिडेंट से मैं क्योंकि किसी ने हाथ पकड़ा था एंड होल्ड किया था मुझे, बट दैट वाज अ 5 सेकंड्स का इंसिडेंट कि मेरे को ऐसे होल्ड किया जोर से और मेरा हाथ पकड़ा था, बट वो इम्प्रेशन इतना गंदा छोड़ गया. आई वाज इन दैट डार्कनेस फॉर 2 years. क्योंकि वो इतना मेरे को ऐसा लगा कि अचानक के हुआ, it comes as a shock कि मैं कुछ खरीदने जा रही हूँ और तब 8 o'clock था, किसी ने ऐसे पकड़ा एंड हाथ पकड़ा एंड आई शाउटेड लाइक एनीथिंग. एंड वो एंड he was trying to grab my waist and I shouted like anything and left and ran away. My brother was the emotional support and each and every part he is like a pillar for me. मेरी बहन को कोई कुछ ना बोले, I'll be there in front of him, and I considered him as a mother because मेरे फादर ने उतना रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज माई फादर इज ओल्ड, तो वो उन्होंने मम्मी में इतना ध्यान दे दिया ना कि जैसे घर की छोटी छोटी जिम्मेदारियां होती हैं, जैसे गैस का बिल, राशन लाना एंड ऑल दैट स्टफ, सेविंग्स. मेरे भाई ने मुझे सिखाया कि आप SIP में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, सब मेरे भाई ने मुझे सिखाया. मैं जाती थी वहां पे तो बोलता था कि ये अपन को ये चीजों में इन्वेस्ट करना है, ये चीजों में इन्वेस्ट करना है. तो आई हैव लर्नड हिम फ्रॉम लॉट. एंड मेरा पूरा शादी का जो भी एक्सपेंसेस था उसने किया है. Wow. Everything at such a young age. He is 28 or 29. वो उसने पूरा मेरा शादी का खर्चा खुद, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड एवरीवन रिलेटिव जो हमारे घर पे आता है, बोला ये लड़के ने पूरा अकेला मैनेज किया था. एंड ही डिड दैट. दैट्स सो नाइस. तो इसी से हमें पता चलता है कि रीमा का ये व्यू क्यों है, क्यों ये ओपिनियन है, एंड इवन आई एम कन्विंस्ड. थैंक यू so much for watching this video. Thank you so much. Bye. Thank you for watching this video. I hope you liked it. If you think we have earned your appreciation and support, do like and share this video and subscribe to your very own channel, Women Wise. Also, hit the bell icon to get the notification whenever we upload a new video. And that's it for now. Bye bye. See you in the next video.